डैनियल 3 चैप्टर 4 चैप्टर हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, फिर पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करो, इन वचनों को हम समझ सके और हमारे जीवन बदलते जाए। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। Daniel chapter 3 Shadrach, Meshach and Abednego are cast into a fiery furnace. Nebuchadnezzar the king made an image of gold whose height was 60 cubits and the breadth thereof 6 cubits. He set it up in the plain of Dura in the province of Babylon. Then Nebuchadnezzar the king sent together the princes, the governors, and the captains, the judges, the treasurers, the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces to come to the dedication of the image which Nebuchadnezzar the king had set up. Then the princes, the governors and captains, the judges, the treasurers, the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces were gathered together unto the dedication of the image that Nebuchadnezzar the king had set up, and they stood before the image that Nebuchadnezzar had set up. Then an herald cried aloud, To you it is commanded, O people, nations, and languages, that at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king hath set up. And whoso falleth not down and worshippeth shall the same hour be cast into the midst of a burning fiery furnace. Therefore at that time when all the people heard the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and all kinds of music, all the people, the nations, and the languages fell down and worshipped the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up. Wherefore at that time certain Chaldeans came near and accused the Jews. They spake and said to the king Nebuchadnezzar, O king, live forever. Thou, O king, hast made a decree that every man that shall hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music shall fall down and worship the golden image. And whoso falleth not down and worshippeth, that he should be cast into the midst of a burning fiery furnace. There are certain Jews whom thou hast set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. These men, O king, have not regarded thee. They serve not thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Then Nebuchadnezzar, in his rage and fury, commanded to bring Shadrach, Meshach, and Abednego. Then they brought these men before the king. Nebuchadnezzar spake and said unto them, Is it true, O Shadrach, Meshach, and Abednego? Do not ye serve my gods, nor worship the golden image which I have set up? Now, if ye be ready, that at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the image which I have made, well. But if ye worship not, ye shall be cast the same hour into the midst of a burning fiery furnace. And who is that God that shall deliver you out of my hands? Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O king. But if not, be it known unto thee,
O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Then was Nebuchadnezzar full of fury, and the form of his visage was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego. Therefore he spake and commanded that they should heat the furnace 7 times more than it was wont to be heated. And he commanded the most mighty men that were in his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego, and to cast them into the burning fiery furnace. Then these men were bound in their coats, their hosen, and their hats, and their other garments, and were cast into the midst of the burning fiery furnace. Therefore, because the king's commandment was urgent, and the furnace exceeding hot, the flame of the fire slew those men that took up Shadrach, Meshach, and Abednego. And these 3 men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down bound into the midst of the burning fiery furnace. Then Nebuchadnezzar the king was astonished, and rose up in haste, and spake and said unto his counselors, Did not we cast 3 men bound into the midst of the fire? They answered and said unto the king, True, O king. He answered and said, Lo, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt, and the form of the 4th is like the Son of God. Then Nebuchadnezzar came near to the mouth of the burning fiery furnace, and spake and said, Shadrach, Meshach, and Abednego, Ye servants of the Most High God, come forth and come hither. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came forth of the midst of the fire. And the princes, governors, and captains, and the king's counselors, being gathered together, saw these men, upon whose bodies the fire had no power, nor was an hair of their head singed, neither were their coats changed, nor the smell of fire had passed on them. Then Nebuchadnezzar spake and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who hath sent his angel and delivered his servants that trusted in him, and have changed the king's word, and yielded their bodies, that they might not serve nor worship any god except their own God. Therefore I make a decree that every people, nation, and language which speak anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut in pieces, and their houses shall be made a dunghill, because there is no other God that can deliver after this sort. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Chapter 4. Nebuchadnezzar acknowledges God's eternal dominion. He relates a dream. Daniel interprets it. The dream fulfilled. First verse. Nebuchadnezzar the king, unto all people, nations, and languages that dwell in all the earth, peace be multiplied unto you. I thought it good to show the signs and wonders that the high God hath wrought toward me. How great are his signs, and how mighty are his wonders! His kingdom is an everlasting kingdom, and his dominion is from generation to generation. I, Nebuchadnezzar, was at rest in mine house, and flourishing in my palace. I saw a dream which made me afraid, and the thoughts upon my bed and the visions of my head troubled me. Therefore made I a decree to bring in all the wise men of Babylon before me, that they might make known unto me the interpretation of the dream. Then came in the magicians, the astrologers, the Chaldeans, and the soothsayers, and I told the dream before them. But they did not make known unto me the interpretation thereof. But at the last Daniel came in before me, whose name was Belteshazzar, according to the name of my God, and in
whom is the spirit of the holy gods. And before him I told the dream, saying, 8 वचन हम हिंदी में जब पढ़ेंगे आपको मैं समझाऊंगी मुझे हंसने क्यों आया। अन्य जाति हम लोगों को समझ नहीं पाते हैं, ओके? अन्य जाति हम लोगों को समझ नहीं पाते हैं, तो उनकी भाषा में उन्होंने जो समझाया दानियल के अंदर कौन सी आत्मा है, ज़बरदस्त उन्होंने वचन में लिखा है, in whom is the spirit of the holy gods. And before him I told the dream, saying, O Belteshazzar, master of the magicians, because I know उसको टाइटल क्या दिया? ओ बेल्तेशज़र, मास्टर ऑफ मैजिशियंस, जादू टोना करने वालों का मास्टर, ऐसा नाम दिया उसको। Because I know that the spirit of the holy gods is in thee, and no secret troubleth thee. Hallelujah, hallelujah. देखा क्या खासियत है उसके अंदर की। Tell me the visions of my dream that I have seen and the interpretation thereof. Thus were the visions of mine head in my bed. I saw and behold a tree in the midst of the earth, and the height thereof was great. 8 और 9 वचन को आप हिंदी में जब पढ़ोगे तब ध्यान देना, ओके? 11 वचन 11 वर्स से, The tree grew and was strong, and the height thereof reached unto heaven, and the sight thereof to the end of all the earth. The leaves thereof were fair, and the fruit thereof much, and in it was meat for all. The beasts of the field had shadow under it, and the fowls of the heaven dwelt in the boughs thereof, and all flesh was fed of it. I saw in the visions of my head upon my bed, and behold, a watcher and an holy one came down from heaven. He cried aloud and said thus, Hew down the tree, and cut off his branches, shake off his leaves, and scatter his fruit. Let the beasts get away from under it, and the fowls from his branches. Nevertheless, leave the stump of his roots in the earth, even with a band of iron and brass in the tender grass of the field, and let it be wet with the dew of heaven, and let his portion be with the beasts in the grass of the earth. Let his heart be changed from man's, and let a beast's heart be given unto him, and let 7 times pass over him. This matter is by the decree of the watchers, and the demand by the word of the holy ones, to the intent that the living may know that the Most High ruleth in the kingdom of men, and giveth it to whomsoever he will, and setteth up over it the basest of men. This dream I, King Nebuchadnezzar, have seen. Now thou, O Belteshazzar, declare the interpretation thereof, for as much as all the wise men of my kingdom are not able to make known unto me the interpretation, but thou art able, for the spirit of the holy gods is in thee. Then Daniel, whose name was Belteshazzar, was astonished for 1 hour, and his thoughts troubled him. The king spake and said, Belteshazzar, let not the dream or the interpretation thereof trouble thee. Belteshazzar answered and said, My lord, the dream be to them that hate thee, and the interpretation thereof to thine enemies. The tree that thou sawest, which grew and was strong, whose height reached unto the heaven, and the sight thereof to all the earth, whose leaves were fair, and the fruit thereof much, and in it was meat for all, under which the beasts of the field dwelt, and upon whose branches the fowls of the heaven had their habitation. It is thou, O king, that art grown and become strong, for thy greatness is grown, and reacheth
unto heaven, and thy dominion to the end of the earth. And whereas the king saw a watcher and an holy one coming down from heaven, and saying, Hew the tree down and destroy it, yet leave the stump of the roots thereof in the earth, even with a band of iron and brass in the tender grass of the field, and let it be wet with the dew of heaven, and let his portion be with the beasts of the field, till 7 times pass over him. This is the interpretation, O king, and this is the decree of the Most High, which is come upon my lord the king, that they shall drive thee from men, and thy dwelling shall be with the beasts of the field, and they shall make thee to eat grass as oxen, and they shall wet thee with the dew of heaven, and 7 times shall pass over thee, till thou know that the Most High ruleth in the kingdom of men, and giveth it to whomsoever he will. And whereas they commanded to leave the stump of the tree roots, thy kingdom shall be sure unto thee. After that thou shalt have known that the heavens do rule. Wherefore, O king, let my counsel be acceptable unto thee, and break off thy sins by righteousness, and thine iniquities by shewing mercy to the poor, if it may be a lengthening of thy tranquility. All this came upon the king Nebuchadnezzar. At the end of 12 months he walked in the palace of the kingdom of Babylon. The king spake and said, Is not this great Babylon that I have built for the house of the kingdom by the might of my power, and for the honor of my majesty? While the word was in the king's mouth, there fell a voice from heaven, saying, O King Nebuchadnezzar, to thee it is spoken, the kingdom is departed from thee, and they shall drive thee from men, and thy dwelling shall be with the beasts of the field. They shall make thee to eat grass as oxen, and 7 times shall pass over thee, until thou know that the Most High ruleth in the kingdom of men, and giveth it to whomsoever he will. The same hour was the thing fulfilled upon Nebuchadnezzar, and he was driven from men, and did eat grass as oxen, and his body was wet with the dew of heaven, till his hairs were grown like eagles' feathers, and his nails like birds' claws. And at the end of the days of Nebuchadnezzar lifted up mine eyes unto heaven, and mine understanding returned unto me, and I blessed the Most High, and I praised and honored him that lived forever, whose dominion is an everlasting dominion, and his kingdom is from generation to generation. And all the inhabitants of the earth are reputed as nothing, and he doeth according to his will in the army of heaven, and among the inhabitants of the earth, and none can stay his hand or say unto him, What doest thou? At the same time my reason returned unto me, and for the glory of my kingdom mine honor and brightness returned unto me. And my counselors and my lords sought unto me, and I was established in my kingdom, and excellent majesty was added unto me. Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven, all whose works are truth, and his ways judgment, and those that walk in pride he is able to abase. दानियल चैप्टर 3। दानियल की पुस्तक 3 अध्याय 4 अध्याय हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूर्त बनवाई, सोने की मूर्ति को दंडवत करने का आदेश। पहले वचन से,
नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हकीमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। जो कोई गिरकर दंडवत न करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय ज्यों ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, त्यों ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूरत को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत की। दनियल के साथियों पर आज्ञा उल्लंघन का आरोप। 8 वचन से आगे। उस समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे। हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने वह गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत न करे वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। देख, शद्रेक, मेशेक और अबेदनेगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनेगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? घमंड देखो उसका क्या है। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? यानी वो देवता को पूछ रहा है कि तुम मनुष्य के हाथ से छुड़ा सकता है क्या? यानी उसके यहाँ पे तो कोई ऐसा देवता है नहीं, उसका कहना है कि उसके हाथ से कोई छुड़ा सके। यानी उसको मनुष्य की ताकत में इतनी घमंड है कि उसके हाथों से उनके देवता लोग भी छुड़ा नहीं सकता है। ओके, तो उसको कहना है कि तेरे पास कोई है तो बता दे, ऐसा कोई देवता है तो बता दे जो मेरे हाथ से छुड़ा सके। उसको उसके हाथ की कितनी घमंड है देखो। ओके, 16 वचन। शद्रक, मेशक और अबेदनेगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। क्योंकि वो बात ही ऐसा कर रहा था।
वो उसके खुद के देवी देवताओं की भी बेइज्जती कर रहा था, उसके खुद के देवी देवताओं के बारे में भी वो बोल रहा था उनके अंदर भी ताकत नहीं है कि मेरे हाथ से तुम लोगों को छुड़ा सके या किसी को छुड़ा सके। तुम्हारे पास कोई ऐसा देवी देवता है तो बता दो कि मेरे हाथ से उसको कोई छुड़ा सके तो। ओके, तो इतना उसको अपने खुद के घमंड इतनी थी कि उसके हाथ से उसके खुद के देवी देवताओं का भी वो अपमान कर रहा था। तो इसके लिए नबूकदनेस्सर को ये लोग जवाब दे रहे, तो खुद अपने ही देवी देवताओं की अपमान कर रहा है, तो तुझे जवाब क्या दे? अब तो इतना मूर्ख बन गया है कि तुझे जवाब देने का हमारे पास तो कुछ बाकी नहीं, इतना तूने अपनी ताकत की घमंड दिखा दी है। ओके, और ये वचन क्या कहता है, 17 वचन, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं। हालेलुया। अब तो अपने की बात कर ली तूने। ओके, तूने अपनी की बात कर ली, अब तुझे हमारी भी बात समझ लेनी है। हम अपने परमेश्वर के, हम कोई देवी देवताओं की बात नहीं कर रहे, हम हमारे परमेश्वर की बात कर रहे, जिसकी हम उपासना करते हैं। वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। तेरे हाथ से कोई छुड़ाना नहीं, छुड़ाने की बात ही नहीं है, तेरे से तो कोई प्रयोजन ही नहीं है, तू तो मिट्टी का पुतला है, तुझे बोलने में कोई मतलब नहीं है। ओके, तो बस अपने घमंड की डींगे मार रहा है। ठीक है, तो तुझे तो हमारे पास जवाब नहीं है कुछ देने के लिए, क्योंकि तू वैसे भी जवाब के बाहर चला गया है, तूने अपनी ही डींगे मार ली है। तो अब ये जो शक्तियों की बात आ गई है, तो ये बात तो तू ज़रूर ध्यान ले कि यहाँ पे एक ऐसा हम परमेश्वर को जानते हैं जिसकी हम उपासना करते हैं, उसके पास इतनी तो शक्ति वो रखता ही है कि वो तेरे लगाए हुए आग के भट्टे के अंदर से हमको बचा सकता है। हालेलुया। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। ओके, ये भट्टे के अंदर से तो हमको निकाल ही लेगा, और साथ साथ तू जो डींगे मार रहा है, तेरे हाथ की ताकत तू बता रहा है, उससे भी वो छुड़ाने की ताकत रखता है। ओके, तो तूने पूछ लिया है तो जान ले, वो रखता है वो ताकत। ओके, तो इस तरह से उन लोगों ने जवाब दिया। उसका जो चैलेंज, चुनौती, उसका चुनौती था कोई देवता है तो बता। ओके, यानी उसका कहना था उसके पास जो देवता है वो इतने ताकतवर है कि अब नबूकदनेस्सर का हाथ कोई उसकी मुट्ठी खुलवा कर उसके भक्ष को निकाल नहीं सकता है। ओके, तो उसने ये चैलेंज लगाया था इन लोगों के ऊपर। तो उन्होंने कहा हमारे पास देवी देवता तो नहीं है, लेकिन हमारे पास जो परमेश्वर है वो इस आग के भट्टी में से हमको निकाल सकता है, और प्लस इतना ही नहीं, तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। वो क्या बोला है, बोला भी। ओके, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। दानिय्येल के साथियों का भट्टे में डाला जाना। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को उठाया, वे ही आग की आंच से जल मरे। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनेगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हे राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया। दानिय्येल के साथियों का सम्मान। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनेगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनेगो आग के बीच से निकल आए। कैसे निकल आए?
फेंकने के लिए तो उनको लोगों की ज़रूरत पड़े थे, है ना, लेकिन उनको निकालने के लिए कोई आया ही नहीं वहाँ पर, क्योंकि आने वाले तो जल रहे थे, है ना। उधर पहुँचते ही लोग उसको डालते डालते जल के भस्म हो रहे थे। ओके, तो निकालने की हिम्मत कौन कर सकता है, क्वेश्चन मार्क, है ना। तो ये तो शद्रक मेशक अबेदनेगो खुद उस आग से बाहर निकल आए, कैसे आए, क्वेश्चन मार्क, है ना। जब अधिपति, हकीम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी न झुलसा, न उनके मोजे कुछ बिगड़े, न उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनेगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर, ध्यान दीजिए इसको, आपके चंगाई दूतों के द्वारा आती है, आपका प्रोटेक्शन दूतों के द्वारा आता है। हालेलुया, आपके लिए परमेश्वर दूत भेजकर काम करवा देता है। आमीन। अपने इन दासों के लिए बचाया, क्योंकि उन्होंने राजा के आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया, हालेलुया, कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत न करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनेगो का पद और ऊंचा किया। नबूकदनेस्सर का दूसरा स्वप्न। नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश, 4 अध्याय का पहले वचन से पढ़ रहे हैं। नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारी पृथ्वी पर रहते हैं, उन सबों को यह वचन मिला, तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े। मुझे यह अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं उनको प्रकट करूं। उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मैं नबूकदनेस्सर अपने भवन में चैन से और प्रफुल्लित रहता था। मैंने ऐसा स्वप्न देखा जिसके कारण मैं डर गया और पलंग पर पड़े पड़े जो विचार मेरे मन में आए और जो बातें मैंने देखी उनके कारण मैं घबरा गया था। तब मैंने आज्ञा दी कि बेबीलोन के सब पंडित मेरे स्वप्न का फल मुझे बताने के लिए मेरे सामने हाजिर किए जाएं। जब ज्योतिषी, तंत्री, कसदी और होनहार बताने वाले भीतर आए और मैंने उनको अपना स्वप्न बताया, परंतु वे उसका फल न बता सके। अंत में दनियल मेरे सम्मुख आया, जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण बेलतशस्सर रखा गया था और जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। देखिए, अन्य जाति लोग पवित्र ईश्वर ऐसे बोलते हैं। उनके देवी देवताओं में कुछ ऐसे देवी देवताएं हैं जिनको पवित्र ईश्वरे, ओके, बहुत ज़्यादा देवियाँ होती है, ज़्यादा देवताएं होते हैं और वो पवित्रता के लिए जाने जाते हैं। उनके बीच में उनके तरह का पवित्रता, ओके, तो उनको पवित्र ईश्वरों का आत्मा, ऐसा दानियल को वो समझते थे कि उसके अंदर पवित्र ईश्वरों का आत्मा रहता है, ओके। और मैंने उसको अपना स्वप्न यह कहकर बता दिया। और देखिए 7 वचन क्या बताता है, ज्योतिषी, तंत्री, कसदी और होनहार बताने वाले भीतर आए और मैंने उनको अपना, परंतु वे उसका फल न बता सके। हे बेलतशस्सर, तू तो सब ज्योतिषियों का प्रधान है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, तू तो सब ज्योतिषियों का प्रधान है। ओके, ज्योतिषी क्या करते हैं, उनके पास जो ज्ञान है वो सारा स्पिरिचुअल ज्ञान है, उससे भी ज़्यादा ऊंचा है बेलतशस्सर, ऐसा उसको कहना है। ओके, मैं जानता हूँ कि तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और तू किसी भेद के कारण नहीं घबराता, इसलिए जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताकर समझा दे।
जो दर्शन मैंने पलंग पर पाया वह यह है, मैंने देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा है, उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है। वह वृक्ष बड़ा होकर दृढ़ हो गया और उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और वह सारी पृथ्वी के छोर तक दिखाई पड़ता था। उसके पत्ते सुंदर और उसमें बहुत फल थे, यहाँ तक कि उसमें सबों के लिए भोजन था। उसके नीचे मैदान के सब पशुओं की छाया मिलती थी और उसकी डालियों में आकाश के सब चिड़िया बसेरा करती थी और सब प्राणी उससे आहार पाते थे। मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया। उसने ऊंचे शब्द से पुकारकर यह कहा, वृक्ष को काट डालो, उसकी डालियों को छांट दो, उसके पत्ते झाड़ दो और उसके फल बिखरा डालो। पशु उसके नीचे से हट जाए और चिड़िए उसके डालियों पर से उड़ जाए, तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच रहने दो। वह आकाश की ओस से भीगा करे और भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग भागी हो। उसका मन बदले और मनुष्य का न रहे, परंतु पशु का सा बन जाए और उस पर 7 काल बीते। यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित है वे जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। मुझे नबूकदनेस्सर राजा ने यही स्वप्न देखा। इसलिए हे बेलतशस्सर, तू इसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में और कोई पंडित इसका फल मुझे समझा नहीं सकता, परंतु तुझ में तो पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, इस कारण तू उसे समझा सकता है। दानिय्येल द्वारा स्वप्न का अर्थ बताया जाना। 19 वचन से आगे। तब दानिय्येल, जिसका नाम बेलतशस्सर भी था, घड़ी भर घबराता रहा और सोचते सोचते व्याकुल हो गया। तब राजा कहने लगा, हे बेलतशस्सर, इस स्वप्न से या इसके फल से तू व्याकुल मत हो। बेलतशस्सर ने कहा, हे मेरे प्रभु, यह स्वप्न तेरे बैरियों पर और इसका अर्थ तेरे द्रोहियों पर फले। जिस वृक्ष को तूने देखा, जो बड़ा और दृढ़ हो गया, जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और जो पृथ्वी के सिरे तक दिखाई देता था, जिसके पत्ते सुंदर और फल बहुत थे और जिसमें सबों के लिए भोजन था, जिसके नीचे मैदान के सब पशु रहते थे और जिसकी डालियों में आकाश की चिड़िया बसेरा करती थी, हे राजा, वह तू ही है। तू महान और सामर्थी हो गया, तेरी महिमा बढ़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई और तेरी प्रभुता पृथ्वी के छोर तक फैली है। हे राजा, तूने जो एक पवित्र पहरुए को स्वर्ग से उतरते और यह कहते देखा कि वृक्ष को काट डालो और उसका नाश करो, तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और इसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो। वह आकाश की ओस से भीगा करे और उसको मैदान के पशुओं के संग ही भाग मिले, और जब तक 7 युग उस पर बीत ना चुके तब तक उसकी ऐसी ही दशा रहे। हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठान लिया है कि राजा पर घटे, वह यह है कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तो बैलों के समान घास चरेगा और आकाश की ओस से भीगा करेगा, और 7 युग तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू न जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उस वृक्ष के ठूंठ को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, इसका अर्थ यह है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा, और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग ही में है, तब तू फिर से राज्य कर नहीं पाएगा। इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे।
यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है, जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू न जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा और उसकी देह आकाश की ओस में भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। नबूकदनेस्सर द्वारा परमेश्वर का स्तुति गान। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता है, तूने यह क्या किया है। उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। मेरी मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा की सराहता हूँ और उसके स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वे नीचा कर सकता है। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद करते, हमें फिट एंड फिक्स करने के लिए, इन वचनों के अधीन हमको लाने के लिए। इस सारे वचनों के द्वारा परमेश्वर हम में ईश्वरीय रचना कर और हम में डिवाइन ऑर्डरलीनेस लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। जॉन 17 चैप्टर 22 वर्स से 26 वर्स, 2 क्रॉनिकल्स 9 चैप्टर 10 चैप्टर। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 22 से 26 वचन तक और दूसरा इतिहास की पुस्तक 9 अध्याय 10 अध्याय हम पढ़ेंगे। अकेले में बैठकर ये वचनों को पढ़ना है, अध्यायों को पढ़ना है। इससे हमने फैसला किया है कि हम अकेले में बैठकर पढ़ेंगे ताकि पवित्र आत्मा हमें व्यक्तिगत रूप में जो बदलाव करना चाहता है कर पाए। ऐसा नहीं है कि आपने भी उसको वैसे ही पढ़ना है। आप चाहो तो आप ये फॉलो कर सकते, नहीं तो आप अपने तरीके से 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान पढ़ सकते हैं। हमने ये प्लान इस प्रकार से परमेश्वर के आत्मा को जगह दिया कि आप परमेश्वर जो चाहते हो हमारे जीवन में, उस तरह का पर्सनालिटी तैयार करो। हमारे जीवन में से पवित्र आत्मा हमें सहायता कर रहा है, ये तरह से हमारे पर्सनालिटी को बना रहा है। हमें बिगाड़ने से जो परमेश्वर की योजना है वो बिगड़ जाती है, तो वो बिगाड़ने वाले स्वभाव में से हमको छुड़ाता है। गिरते हुए हालातों में से वो हमको संवरने के रास्ते बताता है। ओके, अकेले में बैठकर पढ़ना यही काम है कि हम अपने व्यक्तिमत्व में परमेश्वर चाहता है उस व्यक्ति में ढल कर आ जाए। ठीक है, यह परमेश्वर के आत्मा का काम है, तो वो हमें सहायता कर रहा है और निश्चित है हमने परमेश्वर के आत्मा का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। पिता परमेश्वर, हमें फिट एंड फिक्स कीजिए इन वचनों के अंदर, हमें ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन।